भाई ये मेरी गोवा की सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक ये छोटी सी चाय की दुकान है और ये है भाई प्योर हेवन भाई। आधे घंटे बाद यहाँ पे सनसेट होगा, प्रॉपर फन। यहाँ पे सूरी कब आए थे हम लोग पहली बार? मेरा तो यहाँ के बात करने का मन नहीं होता। We are two stand-up comedians with a shared passion for food. 4 दिन की जिंदगी है, 5 दिन का टेस्ट मैच। टाइम कम है और खाने की बकेट लिस्ट बहुत लंबी, इसलिए हम निकल पड़े हैं looking for meals that not only fill the stomach but also the soul. I am Nishan Suri, he is Nitin Mandal, and this is Suri Safari. In this episode हम आ गए हैं अरेबियन सी के सबसे चिल्ड आउट किनारे गोवा, क्योंकि वो कहते हैं ना, सबको साल में एक बार तो गोवा आना ही चाहिए। आना चाहिए, और वो भी बारिशों में, क्योंकि गोवा इन द मानसून इज क्वाइटर एंड ग्रीनर। No idea. There's nothing like sitting in a small cozy bar, drink in hand, sound of thunder as background music, watching the world slow down outside your window. Monsoons is when Goa resets. सीजन टाइम में टूरिस्ट जितने पाप करके जाते हैं, बारिशें आकर वो स्तब्ध हो जाते हैं। I know this because I spent 4 years of my college life here. So now every time I come back, there is this longing to go back to those days. The Portuguese have a word for it. Saudade. Saudade means missing something deeply, even when you know it'll never come back. And yet, I keep coming back because Goa always has something new to offer. So I'm here with Mandal to explore a side of Goa that at least we've never seen before. Off season, off beat, but on point. जर्नी शुरू हुई हमारी गोवा के एक विलेज लाट फेम से। बरमरे इज कोंकणी फॉर हाय, हाउ आर यू? बरमरे गोवा में हम बॉर्डर पे हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर। 2 किलोमीटर यहाँ से आप जाओगे तो महाराष्ट्र का बॉर्डर आ जाएगा। सब पता है भाई। If this was still under the Portuguese now, you would need a passport to cross the border. Fortunately, we are India, so we can just go. Plus nobody wants to go to Maharashtra. JK man, JK. Our guides for this journey are Clyde Tellis, who is a premium experience curator. मोटा मोटा बोलूं तो गोवा के हिडन जेम्स का encyclopedia. और प्रवीण, लाटफेम का लोकल सोशल मीडिया स्टार, who loves sharing stories of his village life. See, what has happened is this place got conquered later. Once that got conquered later, has lesser number of churches, lesser number of Christians. So you have places like Panjim that have a lot of people speaking Portuguese and English speaking. Here, you try speaking even Hindi, they will struggle to speak Hindi. So that's the level of difference that you see within the same state. So how they entered Goa is through the rivers. Right. So wherever the rivers were good, Mandovi being one, Zuari being another one, Sal was another one. There you will find good number of monuments as well as churches facing the river, because that was used as a navigational marker back in the day. ये हमारा बैद ये टेंपल हुआ करता था छोटू सा, तो इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन नाउ। ये पोर्चुगीज इन्वेजन में नहीं जबरदस्ती अरे भाई। तरपाल डाल के गए थे पोर्चुगीज यहाँ पे ना। पता नहीं ना लास्ट में ये वाला। देखो इन्वेजन्स का क्या है, that they don't just change who's in charge, they also change मेन्यू में क्या है। अफ्रीका के काफिर लोगों से शुरू हुई एक सिंपल चिकन डिश जब पोर्चुगीज सोल्जर्स के साथ गोवा एयरपोर्ट लैंड करी तो चिकन कैफ्रियाल बनकर निकली। अब इसी फ्लाइट में था एक और पैसेंजर जिससे मिलने आ गए हैं हम पदेरिया प्रेजेरिस टू ट्राई देयर फेमस पास्तेस de nata, also known as a custard tart. Custard tarts, Nitin. जी। Where did custard tarts come from? Good question. Custard tarts were invented in Portugal in a monastery in Lisbon by monks. ये जो egg white होते हैं वो monks वगैरह अपने कपड़ों को starch करने के लिए यूज करते हैं, monks and nuns. तो जो egg white यूज होता था तो egg yolks बहुत सारे बच जाते थे and those egg yolks were used to make these pastries and that's where it came from. ये मंक लोग ने बनाया क्या है? आफ्टर ओल्ड मंक इन लोगों ने अगर कुछ बढ़िया चीज बनाई है तो मैं टेस्ट शुरू करो करना आप. I would चाहूँगा। like to know your reaction.
मंग लोगों ने माहौल तो बनाया भाई, उसकी कोई दो राय नहीं है. Very nice, very creamy. Actually, pastel del nata, whatever that name is, it means cream pastry. That's where it comes from. It's a little because it's baked in the oven, I guess. It's like हल्का सा जैसे crème brulee होता है ना, crisp हल्का सा वैसा है. भाई ये क्रीम रोल है जिसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी है और ये पढ़ के आया है वहाँ से. ये क्रीम रोल है भाई हमारा देसी. क्रीम रोल इमेजिन करते हुए दिमाग में वो आता है कि वो दुकान के अंदर 10 पड़े और ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है. Apart from the custard tart, Paderia Prazeres is also known for their fresh breads, pastries, and sandwiches. So we tried the sausage roll, pork sandwich, and the chocolate cake. सब कुछ बहुत बढ़िया था. Everything hit the mark. बड़ी मगे सिखाया इन्होंने, बड़ी मगे. I knew ये खरगोश है. फॉर्चुनेटली कल ही गाय को ये हो गया, बच्चा हो गया. बच्चा हुआ. हाँ, तो अब मैंने बोला ठीक है बढ़िया. तो गाय का जब बच्चा होता है तो हर फर्स्ट फ्यू मिल्क साइकिल्स, आई डोंट नो द करेक्ट वर्ड इज, उस मिल्क से बनता है ये खरगोश. इट इज अ स्वीट. इसका कुछ हेल्थ बेनिफिट भी है या जस्ट टेस्ट ऑफ फन है? पता नहीं रिसर्च नहीं किया. ये इसमें क्या क्या होता है बेसिकली? मिल्क और क्या है, क्या कैसे बनता है? मम्मी दूध, कच्चा दूध है, इलायची, coconut milk, and jaggery. जैगरी So the color become like this. Our jaggery is orange color here. इट्स वेरी टेस्टी. Color. टेस्टी इन दी जैगरी. Color. orange. बड़े ऐसा. वन कॉमन वर्ड बरो. White color. अच्छा, हाई में भी भरो, टेस्टी में भी भरो, बाय हेल्थ वाइज बरो. भरो. लाइक दिस. बड़ी मसा. बड़ी मसा. बड़ी मसा. ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करो. Out here in Latfam, the Goans are gentle, grounded, deeply connected to their land and to each other. We were constantly aware that we were far away from the Goa of pop culture, which for some reason is always beaches, beer, and a Catholic uncle called Anthony Gonzalez. But that didn't stop Mandal from asking, तुमको फैनी बनानी आती है? हाँ, मतलब ऐसे करो. काजू उग गया 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बिक रहा है. बिल्कुल भाई. उसे आता है? हाँ, मतलब ये स्टॉर्म करना होता है. तो हर एक विलेजर के पास कैशू प्लांटेशन होता है बड़ा सा. हर विलेजर के हर पास. विलेजर के पास, यहाँ पे एवरी विलेजर. You said mostly it's all Hindu families. 100%. Consumption of beef is popular here, right? हाँ. With Catholic. हाँ, मेरे ख्याल से ना there are two sections in Goa. One section who is like very open to everything, Yeah. and mostly you will find in developed parts of Goa, Parvarim, Panjim, coastal. दूसरा है ना who is like कि यहाँ पे आप villages में ऐसे पूछोगे भी ना किसी को कि बीफ बनता है, they'll give you the strangest of reactions, and that is true in the villages as per me. But they're still okay with it being consumed. They know it's being हाँ, consumed. आप करो. But जो it's not आपको like करना है. वो. But even speaking about it is a bit offensive. How can you talk? How can you ask those questions? Talk to Catholics, they are so liberal correct, about that's- this. Yeah, you don't eat beef, you're missing out on life. So it is very normal eating beef, pork. Without that, we are not very comfortable with eating food in general. We need our meats. So contrasting two It's things. very extremely contrasting. तो हम लोग का नॉनवेज कितना है डाइट में? हर रोज कितना ऑफन खाते हो आप लोग? चिकन ही खाते हो? फिश, यहाँ पे तो फिश आई थिंक हम लोग पिछले जन्म में बिल्लियाँ थे. जैसे मेरी माँ शी इज लाइक प्रॉपर, उनको फिश दे दो ना तो ऐसे बेड से खड़े हो जाते. So cute. आमड़ा. इसका पिकल बनाएंगे. पिकल बनाता है, कड़ी ग्रेवी बनाते हैं. ऐसे एक्सप्लेन करा, मराठी करा, हिंदी करा. गणेश चतुर्थी को इसको डिमांड बहुत है. अच्छा, हाँ, इसको बेचोगे आप? हम बेचेगा नहीं, ये हमको खाने के लिए मिलता सारा है. खाने ऐसा है. तो कच्चे मैंगो जैसा टेस्ट है. पैसा मसाला और मिर्ची लगा के बहुत सही मिर्ची लगेगा. लगा के ऐसा लगा. थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा नमक मिर्ची नमक डाल के उसको चटनी बना के. और 60 ml. अच्छा आता है. ये वाला और जो वो आलू बोला था ना, दोनों आपको लंच में मिलेंगे आज. आज हाँ, खाना भी बहुत सही है. ये खेत था पहले. तो ड्यूरिंग मानसून ना यहाँ की लोकल फिश ना अपस्ट्रीम आती है. सो मैं और मेरा कजिन 2-3 लोग ना, हम लोग पेट्रोमैक्स लैंप लगाते हैं, केरोसिन का जो लैंप लेते हैं वो लगा के जाते हैं 7-8 बजे शाम को. वहाँ से एंटर कर जाते हैं तलवार लेके
लैंप लेके हाँ फिशिंग करते हो? हाँ स्पॉट फिशिंग मतलब ऐसे इन द नाइट इन दैट सेम डिम लाइट ऑफ दैट पेट्रोमैक्स लैम्प आपको जाके देखना होता है कौन सा फिश है। और मैं बचपन से करता आया हूँ, सो आई कैन रिकॉग्नाइज ये शेडो है। तो आप ये पानी में चल के जाते हो? हाँ, ये पूरा ना थोड़ा बारिश हो जाए ना, दिस बिकम्स लाइक अ प्रॉपर स्ट्रीम। तो इसीलिए हमसे मछली नहीं पकड़ी थी, हम रॉड लेके निकले थे भाई, तलवार लेके निकले। गोवा की मछलियाँ हैं, रोज खाया जा रहा है उन्हें। नाउ तो दे हैव डेवलप्ड सम डिफेंस मैकेनिज्म ना, कैसे से करके निकल जाती है तलवार, दे आर नॉट यूज्ड टू। A fishing, well I'm just wishing Lady Luck was on my side. मीट हर्मन, अ ब्लूज म्यूजिशियन जिनसे गोवा की सारी मछलियां डरती हैं बिकॉज ही कैचेस देम ऑल। तो हमने सोचा कि गोवा में हो और फिशिंग ना किया तो क्या किया, इसलिए वी रिक्वेस्टेड हर्मन टू टीच अस रुकीज सम रॉक फिशिंग, जिसके लिए हम आ गए हैं फोर्ट अगवाड़ा। As you see, there's a small hook and a big hook. You know, so if a fish bites and it runs ahead, for him to get hooked, there's this much play, like, you know. If too many hooks, too many hooks spoil the broth. Yeah. A fishing, I'm just praying. Tick, 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 tick. If you feel something running, then you just raise the rod. For the bite with the rising tide. Has he caught something? Maybe. Got stuck on the rock. This is being pulled. Does it mean it's? I mean, look at that stretch. Huh? Kuch to, I mean, there's a lot of tension there. What about me? What about mine? There's a lot of kachra in the water, like, so sometimes when that gets stuck on the line, you get a feeling that. I just feel like. A fishing, I'm just wishing Lady Luck was on my side. Hey, kuch aaya. A fishing, I'm just praying. Bite for the rising tide. अरे मैंने क्या कर लिया, एक्वामैन पकड़ लिया है क्या? भाई सो डेड बॉडी आ जाए. There is something. Wonder if it's an eel or something. No, bhai, there was nothing. Bro, I think you have to load up again. मैं तो खाना ही खिलाने आया हूँ मछलियों को. I was just telling you we reel it in and then there's a paper attached there which says you're beautiful and then we say, oh, we were fishing for compliments. Step back, no, Nishant, a little bit. Do you see the reception that Joe got? As you can see, it is a very joyful activity. अबे साले हमारे पेचर अड़ गए. पतंग थोड़ा ना लड़ा रहे हैं. भाई हमने फिश रॉड से पेचर लड़ा दिए. एक सेकंड. मुझे ऊपर, मेरा ऊपर है. Doesn't have to be the last day. Close the bail out. निशान सूरी सफारी, मैं भी आ रहा हूँ. मॉनसून में गोवा का जीपीएस बहुत सिंपल है, खो जाओ और एक वाटरफॉल खुद ढूंढ लेगा तुम। If Hanuman kind from Bangladesh, which stepper, underground rapper. Lunch at Praveen's place was a traditional home-cooked meal. Simple, seasonal and entirely vegetarian क्योंकि श्रावण चल रहे थे. बढ़िया भूख लगी होगी ना? बहुत ज़्यादा. Auntie brought us a plate of ingredients and challenged us to decode what was what. Now as someone जिसका सब्जियों के साथ थोड़ा hate टाइप का relationship रहा है, I was a little intimidated. Yam, bamboo, अरबी, the stuff of nightmares. ये कहाँ फंस गया मैं? मम्मी आज मैं वाड़ा. Oh. Then the food came, and so did the friendly spectators. थोड़ा एक पोर्शन बाहर रखो. सब में से थोड़ा. एक दो आइटम ही रख दो. क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है? बस फॉर द एंसेस्टर्स. फॉर द एंसेस्टर्स. मेरे एंसेस्टर्स को तो चिकन का शौक था. खाना शुरू करते ही मेरी सारी एप्रीहेंशंस गायब होने लगी.
The food was absolutely delicious. Everything we ate was homegrown. The tangy ambada was the highlight, but a special mention to khatkate, a mixed vegetable curry that somehow managed to sneak 10 vegetables onto my plate. सब कुछ बहुत टेस्टी है यार। सब्जियां पसंद आना मेरे लिए इज अ बिग थिंग। मुझे लग रहा था कि मुझे कैमरे के लिए प्रिटेंड करना पड़ेगा कि सब्जियां, पर जेन्युइनली सब कुछ बहुत अच्छा है। ये अगर पूरा खाया तो कुछ तो हेल्थ का ठीक हो जाएगा। मतलब The meal was simple, nourishing and wholesome, just like our day in Ladfen. और अब चलते हैं ऑफबीट से थोड़ा टीशे की तरफ. From the quiet village lanes of Ladfen to the hustle and bustle of Panjim, walking through its streets, soaking in the charm of its Portuguese architecture. आज का मैंने बहुत अच्छा खाना खाना है क्योंकि बकचोदियाँ बहुत कर ली, बातें कर ली, इनसाइट्स लेने की कोशिश कर दी, कुछ एकदम एसेंस वाला जो सुविधा भाई कुछ एकदम मजा आ जाए ना खा के, जो कचौड़ी खा के मजा आया था बनाया कि अंदर से वो वाला कुछ खाना है। तो उस उम्मीद में आए हम पहले लाडर एंड फोक करके जगह है। That's the polo picante. पोक चबाटा, पोक पोर्चेटा. भाई मैं पोर्क खाता नहीं हूँ लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स सूरी सफारी मैन। भाई बहुत सही यार, ये देख रहे हो? माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, बिफोर द इट टचेस योर टंग, वो लेमन का थिंग इज ऑलरेडी इन योर नोज, इट्स ऑलरेडी इन योर माउथ। कोकोनट भी ऊपर ही है और ये भी ऊपर है, इसलिए ओवर पावरिंग नहीं है कुछ भी फ्लेवर। भाई ये डेथ रो मील में जाने लायक सबसे मतलब बेस्ट आइटम। आई एग्री विद हिम ऑन द डेथ रो मील पार्ट। मैं भी मंडल के मरने से पहले लास्ट मील यही खाना चाहता हूँ। भाई चीटिंग है ये, ऐसे नहीं कर सकते लोग। We tried coconut and lime donut which is extremely good. बदतमीजी है भाई वो ये बदतमीजी है भाई, बदतमीजी ये है कि भाई तुम 5-6 चीज़ें हमने मंगाई है, सारी कैसे सही दे रहे हो, सारी सही कैसे दे रहे हो? भाई 10 में से तू कितने देता है वैसे? 15 ब्रो। हाँ 10 में से 15 क्योंकि 10 इसके हैं और 5 मेरे हैं, तो ये गुड 15 है। बाकी बेस्ट तो आई थिंक वो हॉट हनी डोनट। हॉट हनी का भाई वो तो मतलब इनक्रेडिबल मैन, माइंड ब्लोइंग। I don't have the ability or the vocabulary to convey that what does it feel like to be sitting here in Goa at this point of time, in the rain, drinking, with no care in the world. अपनी अपनी फनी पी रहे हैं, थर्सडे है। ऐसे छोटे मोटे बार्स का कॉन्सेप्ट दिल्ली वगैरह में नहीं है, राइट? जहाँ मतलब खाने को वाली 4 चीज़ें हैं, लेकिन तुम आ रहे हो तो तुम चिल करने के लिए आ रहे हो, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स, प्राइमरली ड्रिंक्स पीने के लिए आ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट दिल्ली में कहीं नहीं होता। अगर तुम जा रहे हो वो शोर शराबा, वो भोसड़ापा, 4 फ्लोर, म्यूजिक, सामने समुंदर है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, वेरी डिफिकल्ट टू बी, तुम चिल ही रहोगे एज एन इंसान ना। बट ये सुसेगार्ड लाइफ भी तो है भाई गोवा की, लेड बैक। और मेरे को लगता है भाई 2 पैक पीने के बाद तो हर बंदा सुसेगार्ड ही है। We are at Sifa Bar in Panjim. Chicken chili, chicken goan chili, chicken Chinese chili, masala chicken chili, mixed vegetable, paneer chili, all round. We are sitting with Savio, who's the owner of this bar and has been running it for the last 7 years. This is a family-run bar. Mostly people come here regularly to drink feni, local feni. Which is what we are doing. We have a kokum feni and we have a masala feni. Now rainy season, a lot of people drink masala feni. They keep your body warm. They have a lot of like around 7 masala inside. This is regular feni, the Goan authentic Goan feni. Okay. Normally people don't want to have a smell, that's why they use a little bit of kokum. So the feni taste doesn't come while talking on the mouth. So they use a little bit of kokum, lime twist, and then a little thing called limca with soda. See, when you drink feni, it should not be a headache, no body pain. It's like a medicine. It's like a medicine, man. So it's a medicine for what? Like for medicine example, for cold. Life. ये कहती है भाई ये जैसा लग रहा है कि विस्की और बियर मिला दी, जीरा डाल दिया। थोड़ा विस्की और बियर मिला के कुछ है। मेरी वाली बेटर है, रंग बिरंगी वाली एज ऑलवेज।
लटक गया हूँ। फाइनल शॉट नहीं चाहिए भाई। एक टाइम पे दिस यूज्ड टू बी अ क्वाइट फैनी अड्डा. नाउ इट्स पैक्ड विद कैफेज, स्ट्रीट आर्ट एंड ट्रैवलर्स. In the daylight, Chapora Lane feels like any other Goan street. But late night, जब बाकी गोवा बंद हो जाता है, तब यहाँ आफ्टर पार्टी शुरू होती. जो पहले एक हिडन जेम हुआ करती थी, आज like most secrets that make it to Instagram, ये जगह completely mainstream हो चुकी है. मूवी डेब्यू हो गया है. हम पी रहे हैं नितिन मंडल की फेवरेट ड्रिंक आराम बार पे. आराम बार है चपोरा लेन. तो ये ड्रिंक है काबो और कोकम, विच इज मेड बाय कोकोनट वाइट रम. काबो है वो, और काबो एक रम का ब्रांड का नाम है. काबो एक ब्रांड का नाम है. इट्स अ कोकोनट वाइट रम. उसके साथ ये है कोकम, स्वीट कोकम है, जिसमें शायद थोड़ा सा मसाला है, थोड़ा सा प्यार है, और ये साथ में एक हरी मिर्ची देते हैं. इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा समझ में नहीं आया, बट सुंदर लगते. तो इसको ऐसे करके कौन सा कैमरा बाइट लेना होता है और फिर रिग्रेट करना होता है कि क्या चुके आप करने. तो इट इज स्टिल स्पाइसी. इट इज स्पाइसी, स्टिल स्पाइसी. लिटिल स्पाइसी भाई, लिटिल नहीं है, काफी है. काफी स्पाइसी है. एक ये यहाँ पे मिलता है आराम बार में. कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं भाई, वो मिर्ची लग रही है. अबे मीठा है ये. ओनर अंकल इतने स्वीट हैं, बहुत ही स्वीट अंकल. और इसकी तो बहुत सी दोस्ती है. मेरी अंकल से बहुत बढ़िया दोस्ती है. एक्चुअली मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर को, इट्स बिच ड्राई डे. पर गोवा का सीन इतना बढ़िया है कि जैसे ही रात को 12 बज के 2 से 3 तारीख हुई, ये लोग दारू बेचना शुरू कर देते पूरा गोवा. फिर 12 बजे के बाद आया और अंकल अंदर से अपना एक बोस का स्पीकर लेके आया और उन्होंने लगा रखा है यहाँ पे. एंड द सॉन्ग ही प्लेड वाज हे शॉर्टी इट्स योर बर्थडे लाइक अ पार्टी. इट्स सो क्यूट यार, बताओ यार. वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन गोवा एंड आई कैन से इट्स माय प्लेस, माय बार, आराम बार. मैंने देखा है कि भाई यहाँ पे जो रशियन आते हैं या जो लोकल लोग हैं, वो लोग ये सब नहीं पी रहे. वो लोग अपनी देसी शराब बैठ के पी रहे हैं, पैक लेते. तेरे को कैसे बताओ रशियन है? एक सेकंड. आई नो हाउ दे स्पीक मदरफकर. दे ऑर्डर लाइक one whiskey with water only. रशियन भाई. गिव मी माय ड्रिंक फास्टर, आई वांट टू किल यू. रशियन भाई. और क्या है भाई, और क्या है? अभी आएगा पीछे से मारने तेरे को. What the fuck are you talking about man? बस कट कर दो, हम शराब पी लेते हैं. I have never had this burger sober. This is a burger to have when you're drunk. It's amazing post-alcohol food. Very greasy, very fatty. Mandal ke liye a little bit of spicy sauce. See the spicy sauce? This is very important to get. जैसे ही भांडो भाई, ये सुबह के 7-8 बजे तक खुली रहती है. If you want to really have something very hearty, spicy, oily, greasy, totally unhealthy, come to this place. This place called Nadeem Burger at Vagator. Please go for it and definitely try this spicy sauce. This is giving up worth. This is the game changer. This spicy sauce, it will change the game when you eat it. It will also change the game tomorrow morning. Totally amazing. तो मंडल और मैं यार, मंडल भाई तो फ्रेम में नहीं आ रहा थोड़ा. एक सेकंड. दार्जिलिंग मोमो इन वैगेटर. पसीना आंटी एसी लगवाओ ना आप. आंटी इतनी बढ़िया, इतनी स्वीट पर्सन है भाई. एकदम के लिए लगता है कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं. A lot of people who give very good food are like this. आपसे प्यार से बात कर, लेकिन अगर किसी ने कहीं कुछ मतलब वो आपकी लगा देंगे. There is a no nonsense attitude in life which I think translates to their food, which is why their food is as good as it is. क्योंकि मैं तो दूसरा जगह तो जॉब नहीं किया. मैं जैसा घर में बनाता था वैसे ही सबको सर्व करते हो. सबका पसंद है. पहले सबसे बड़ी हमारे ये होता है दूसरे का पसंद. हम लोग खा रहे हैं स्पिनच चीज मोमोज.
This is I die like for. them better than the chicken momo, but this is that good. I want to try. ये झोल मोमो है। झोल मोमो ये बताएगा भाई इसके एरिया के हैं बंगाल, क्या होते हैं झोल मोमो, बताओ जरा। पहली बात तो झोल मोमो बंगाल के नहीं है भाई, नेपाल के हैं। इट्स मोमो विच कम्स विद अ ग्रेवी। इट्स कॉल्ड झोल। झोल माने तरी, और ये बनती है पीनट सॉस से, स्पाइसेस से। इस कुछ वेजिटेबल्स होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली एग है। डोंट मिस दिस नूडल। आस्क हर टू मेक एक्स्ट्रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा सोया सॉस, अपने हिसाब से इसको बनाओ। एंड इनकी यहाँ की है पीनट सॉस विच इज नॉट दैट स्पाइसी बट गिव यू एक्स्ट्रा फ्लेवर। एंड peanut chutney with momo also one of the way to finding good authentic momo. So yeah, so thank you. सबको साल में एक बार तो गोवा आना ही चाहिए। आना चाहिए, because the more you know Goa, you realize that the less you know Goa. आना चाहिए also because Goa is changing. Your favorite spot is changing. For the better or worse, हम कौन होते हैं बोलने वाले? कुछ जगह होती है जो आप खाने के लिए जाते हो, कुछ जगह होती है जो आप जगह के लिए जाते हो। ये जगह वैसी है जहाँ आप दोनों चीज़ों के लिए आते हो। चाय पी रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, सामने जेंटल वेव्स आर लैपिंग अगेंस्ट द शोर, द सन इज सेटिंग, देयर इज अ नाइस विंड, इट्स काम, यहाँ कोई नहीं है, इट्स योर ओन सीक्रेट लिटिल प्लेस। चाय है, पकौड़ा है, तन्हाई है, सौदाद है, सौदाद। वाह वाह वाह। मैं क्या करूं, मेरे लिए नहीं है भाई ये किसके लिए है? ये क्रू, ये क्रू आने के लिए है। क्या कर रहा है मंडल? ऑमलेट ब्रेड बट इन अ पोई। मंडल इज नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ ऑमलेट ब्रेड। लाइक हर जगह सेम ही टेस्ट करता है ऑमलेट, तो क्या करता है, कुछ तो नया होना चाहिए ना भाई। भाई सही बात है, जीवन से ब्रेड अंडा ही टेस्ट किया। सरप्राइज करो। ये तो सरप्राइजिंग है ना, मतलब नॉट द यूजुअल, अंदर ग्रेवी है भाई, ब्रेड अंडा। तो अंडे के तो हर किसी भी चीज पे ऐसे रिड्यूस कर सकता है तू कि भाई ब्रेड और चिकन। भाई नहीं नहीं, एक तो चिकन बनाना पड़ता है भाई, मेहनत है। ऑमलेट कैसी बनाया था? ऑमलेट बनाने में क्या भाई, मेरे अगर 2 हाथ ना हो ना तो ऑमलेट बना दूं मैं, ठीक है? आर यू श्योर अबाउट? यस, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट भाई। ऐसे पैर से कट 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 कट। भाई लोग पियानो बजा ले रहे पैर से, मैं ऑमलेट नहीं बना सकता यार, ये क्या? जापानीज ऑमलेट नहीं बना सकता तू, ओमू राइस। ओमू वो बिना चॉपस्टिक वो भी कर ही सकता है अगर हाथ नहीं है और खाली है। भाई गैस बंद करके तो कोने उसका से ऐसे कोने से